बढ़िया लग रहा है। ये हमारे स्पोर्ट्स का चेयरमैन आप मिले हो? हाँ मिला हूँ मैं। आपको हमारे एमएलए देख लो आप। डॉक्टर राखी गुप्ता, नमस्कार सर। ये रजिस्ट्रार है मैडम। ये आपको मैं बहुत पुराना जानता हूँ। हाँ जी सर, आशीर्वाद आशीर्वाद है। रिकॉर्ड कर देते हैं। प्रोफेसर जाकिर खान, नागपुर यूनिवर्सिटी। शिवाजी सौराष्ट्र से डॉक्टर रजनी पटेल गुजरात। डॉक्टर हरजीत कौर फ्रॉम महाराजा सिराजुद्दौला नमस्कार नमस्कार। बच्चों को शारदे कर दे हृदय सुंदर ही मंथर, शारदे कर दे हृदय सुंदर ही सुंदर। to play West Zone Inter-University Tennis Tournament 2014. We also welcome Shri Ashok Parnami, who
who is our chief guest this morning. We are glad to welcome teams from all over West India, including participants from Bhopal, Pune, Ahmedabad, Nagpur, Mumbai, Udaipur, Gwalior, Kota, Kolhapur, Rajkot, Surat, Nasik and Jaipur. Ladies and gentlemen, sports. It is said that does not only builds character, it reveals the 5 positive qualities behind every sportsman, or in our context, sportswomen. It's the stamina, the speed, the strength, the skill, and the greatest of all is the spirit. Shri Ashok Parnami, MLA and State President, BJP. Thank you, sir. Namaskar. The chief guest of this morning, Shri Ashok Parnami, Chairman of the University Sports Board, Shri Ratnesh Kashyap, tennis teams from various parts of the country, members of J Club, office bearers of J Club, guests, coaches, and their colleagues. On behalf of the IIS University, I extend a very hearty welcome to all of you today when we host the first event, sports event of this magnitude under the banner of the IIS University. The IIS University is not a very old university. We started as a girls' college in 1995, and it was only in 2009 that we were granted or deemed to be university status. The review committee constituted by the Government of India put this university under category A of the 38 universities which it considered to be of standards. The inter-university tennis tournament for women is an event which we have been looking for a number of years. We requested the Association of Indian Universities to allow us to host it, and we must thank them for having permitted this event to be held here. The project has been supported by the United Dream Builders. We are grateful to them. It has been fully supported by J Club. We are indeed indebted to them, and it has the blessings of people like Shri Ashok Parnami. We are grateful to them. So, ladies and gentlemen, I extend a very hearty welcome to all of you, and I'm sure the 5-day tournament which begins today will prove to be something good for all of us when we play in the spirit of the game. Winning or losing is not important. What is important is the spirit to play, the spirit of competition. So I wish you all best of luck and thank you. आदरणीय अशोक जी गुप्ता, आदरणीय कश्यप जी, आईआईएस यूनिवर्सिटी के सभी प्राध्यापकगण और पूरे देश से आई हुई टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने आई हुई सभी प्रतिनिधिगण, सभी कोचेस महोदय, जय क्लब के सभी पदाधिकारीगण, सुभाष जी गर्ग, सबसे पहले तो मैं अशोक गुप्ता जी को
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में, आपके यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष की टेनिस की टीमें यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आई हैं। ये आपके नेतृत्व का कमाल है जो आपने जयपुर शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। अशोक गुप्ता जी से मेरे संबंध बहुत पुराने। जब आप महावीर स्कूल में, अपने माहेश्वरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तब से आपसे मेरी मित्रता रही। और जिस प्रकार की डेडिकेशन से आप बच्चों को शिक्षा देते थे, बच्चों का किस प्रकार से अच्छा निर्माण हो, ये मैं आपके माध्यम से देखता था। मैं उस समय भी आपसे प्रभावित था और आज तो आपने जयपुर शहर में एक नाम कमाया है, एक नाम बनाया है, क्योंकि मेरी बिटिया भी, दोनों बिटियां आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से पढ़ी हैं। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपके हाथों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित ही नहीं, मजबूत भी है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और कहते हैं देश का भविष्य विद्यालयों में पलता है। यदि देश का भविष्य हमें मजबूत करना है तो हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको हमें मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर ही हमारे देश के भविष्य का निर्माण होता है। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे देश की नींव बनने वाले हैं, उनका निर्माण वहां पे होता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों से एक सीधा संपर्क किया, अपनी बात को बच्चों के सामने रखा और बच्चों की बातों को उन्होंने सुना। मैं समझता हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत भी होगा और देश आगे भी बढ़ेगा और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और जो सपना हम भारतवर्ष के सभी लोग देखते हैं कि एक दिन हमारा देश परम वैभव तक पहुंचे, वो निश्चित रूप से वो सपना हम सभी का पूरा होगा। आज सभी बच्चे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, खेल को खेल की भावना के साथ खेलें। आप में से कोई इसमें विजयी हासिल करेगा, कोई विजयी हासिल नहीं करेगा, परंतु जो टीमें इस बार विजय हासिल नहीं करें उनको इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जब अगली बार यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो या कहीं पर भी प्रतिस्पर्धा हो, आप उसमें विजयी प्राप्त करें, इस बात की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जो टीम अभी विजय हासिल करे उसको इसे प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए और अधिक मेहनत करते हुए भविष्य में भी वो आगे बढ़े, इस बात की वो प्रेरणा लेंगे। आज अशोक जी गुप्ता ने मुझे यहाँ बुलाया, जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जय क्लब के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस परिसर में जिस प्रकार से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ावा आप दे रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I now request our chief guest, Shri Ashok Parnami, MLA State President, BJP Rajasthan, to declare the West Zone Inter-University Tennis Tournament open. I declare West Zone Inter-University Tennis Women Tournament 2014-2015 open.
Thank you, sir. Swear that we shall take part in West Zone Inter-University Tennis Tournament 2014-15, respecting and abiding by the rules which govern them without the use of doping and drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. Thank you. Nesh Kashyap to propose a vote of thanks. IAS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री अशोक गुप्ता, रजिस्ट्रार राखी जी और इस टूर्नामेंट की कन्वीनर रेणु जी, IAS यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यगण और दूर दूर से यहाँ पर पधारी अनेकों टेनिस खिलाड़ियों और अन्य मेहमानों, आज IAS यूनिवर्सिटी के कार्यकलापों में और IAS यूनिवर्सिटी की ख्याति में एक नया आयाम जुड़ गया है, जबकि ये एक अनूठा कार्यक्रम वेस्ट जोन विमेन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन IAS को करने को मिला है। इस अवसर पर इन टीमों को और IAS यूनिवर्सिटी को आशीर्वाद देने के लिए श्री प्रणामी ने जो समय निकाला है, और आज अब सभी लोग जानते हैं कि इनके पास में समय की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि इस वक्त यदि व्यस्ततम व्यक्ति कोई स्टेट में है तो वो प्रणामी जी हैं, और उन्होंने आज ये समय निकाला, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके द्वारा दी गई प्रेरणा सभी बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इस प्रतियोगिता के लिए जय क्लब ने हमें ये प्रांगण इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हम इनका जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा वेन्यू है जिसमें डेविस कप की प्रतियोगिताएं हुई हैं, विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं और भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जब भी यहाँ पर होती हैं तो यहाँ पे आने वाले जो खिलाड़ी हैं वे यही कहते हैं कि शायद देश के गिने चुने टेनिस कोर्ट्स में ये इस जय क्लब का स्थान है। और यूजुअली मुझे कहा गया कि ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ये IAS का मान और आप सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये उपलब्ध कराया है। जय क्लब का मैं IAS यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस टूर्नामेंट में दूर दूर से कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, राजकोट, ग्वालियर, बहुत दूर दूर से जो टीम्स आई हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग गुलाबी नगरी में इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट का आप आनंद लेंगी और साथ में यहाँ से अपने व्यक्तित्व को और विकसित कर ले जाएंगी। आप सब ने यहाँ आने का जो आए हैं उसके लिए हम सब आप सब लोगों के आभारी भी हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मैं एक व्यक्ति का नाम खास तौर पर लेना चाहूँगा और उनको आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा। वो हैं रेणु शिंगलू जी, जिनकी ऊर्जा
और जिनकी जिनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। आप का डिवोशन देखना मैं समझता हूँ हर उम्र के व्यक्तियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर ये बालिकाएं, उनको इन्हें देखें और इनके व्यक्तित्व को देखें और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की ऊर्जा अपने आप में पैदा करने से जीवन का मतलब बदल जाता है। तो आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रेषित करना चाहता हूँ और साथ में यहाँ आए सभी मेहमानों के लिए एक मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और IIS यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। All to please rise for the national anthem. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी नेशनल चैंपियनशिप को यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया और जय क्लब के भी सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि परिषद में क्लब एक्टिविटीज़ के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी काफ़ी बढ़ावा देते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पर इतना अच्छे टेनिस कोर्ट बने हुए हैं कि डेविस कप भी यहाँ पर हो रखा है। खेलों को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। आज पूरा विश्व स्पोर्ट्स की ओर देख रहे हैं। पूरे विश्व में अब के ओलंपिक्स होते हैं, एशियाड्स होते हैं, आज अपना देश इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो जो पहले परिणाम आते थे उससे कहीं अच्छे परिणाम आजकल आ रहे हैं। इन खेलों की प्रतिस्पर्धाओं से, इन प्रतियोगिताओं से निश्चित रूप से हमारे बच्चों में खेल में एक रुचि पैदा होगी। खेल की दृष्टि से भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। निरंतर इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। ये पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में निरंतर कमी आई है। तो रेट्स बहुत कम हुए। आपने देखा होगा 10 से 11 रुपए लीटर डीजल में कम हुए, पेट्रोल में कम हुए, गैस में कम हुए। ये सब अच्छे दिन आने के संकेत हैं। लेकिन ये जनता को जो वैट बढ़ाया वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा जनता को, अचानक से क्यों बढ़ा दिया? देखिए, वैट का हमने समानीकरण किया है। पूरे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल में जो अपने वैट है उसका समानीकरण करते हुए हमने काम किया है। और निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस का वित्तीय कुप्रबंधन था, पूरा राजस्थान प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया था। अब राजस्थान प्रदेश को विकास भी देना है, राजस्थान प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी बनाना है। तो उसमें कुछ इस प्रकार के एक्शन लेने पड़ते हैं जो इस दिशा में लिए गए हैं। वो केवल मात्र 4% इस पर बढ़ाया है। मध्य प्रदेश ने भी बढ़ाया है, बाकी गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है। तो जितना रेट कम हुआ उसका कंपैरिजन देखेंगे तो उसका 5% भी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो 4% वेट बढ़ाया है ये राजस्थान प्रदेश के विकास में ही काम
हेलो हेलो हाँ वो क्षमा हो गया। राजीव गांधी भोपाल से। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और सोलापुर यूनिवर्सिटी सोलापुर team and manager report to the announcing table. Solapur University, Solapur, Gujarat University, Ahmedabad. Coaches and manager report to the announcing table. Vanasthali University, Vanasthali versus Nirma University, Ahmedabad. Coaches and manager report to the announcing table. Vanasthali University, Vanasthali और Nirma University, Ahmedabad. Man of the peace. हेलो आपका 700
ठीक है इनका तो चल कैसे भी मिलेगा ये सभी नहीं तो भाई सर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन्हीं का होगा मेरा के पास एक दिन भी आती नहीं है नहीं गई
Outside. Next match on court number 2. Repeating again, the IAS University Jaipur versus the Narwak South G University Surat. गोपी सर रिपोर्ट करें अनाउंसिंग टेबल पे।
संपली माझी
point. E point. E point. Ball of the court. Second serve. Ball. Second. सर आज टर्म किती आहे आपली